اگر آپ کو بھی ہارر کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی ایسی خوفناک اور سبق آموز کہانیاں جو آپ کو آخر تک باندھ کر رکھیں گی۔ اور یاد رکھیے، ہر کہانی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ہارر سٹوری آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی اس ہارر سٹوری میں ہے پرانے لاہور کی پرانی حویلی، جس کے کمرے میں 3 چڑیلوں کو قید کیا گیا تھا۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ گویا پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور جو آج کل بہت بڑا شہر ہے، 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کراچی کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، جس کا شمار دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے، جہاں اب تجارت، صنعت و حرفت، تہذیب و تمدن اور علمی ترقیوں کے لحاظ سے اس وقت یہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی پاکستان کی سرزمین بھی ہندوستان کا ہی حصہ تھی۔ اس وقت لاہور بھی چھوٹا سا شہر تھا جو صرف 12 دروازوں پر مشتمل تھا۔ لاہور ان دروازوں کے اندر ہی اندر سمٹا ہوا تھا۔ صرف چند ایک ہی چھوٹی چھوٹی بستیاں لاہور کے ارد گرد موجود تھیں، لیکن لوہاری منڈی کا چوک جو آج کل جھنڈا چوک کہلاتا ہے، اس میں کوچہ پیر بھولا موجود ہیں۔ پیر بھولا کے مزار مبارک کے سامنے گلی میں سکھوں کی ملکیت ایک بڑی 4 منزلہ کوٹھی نما عمارت، جس میں کافی سارے کمرے بنے ہوئے تھے، جو آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم موجود ہیں۔ اس عمارت میں سکھ فیملی کی رہائش کے ساتھ ساتھ کچھ مافوق الفطرت مخلوق بھی رہائش پذیر تھیں، جو نہ صرف اس عمارت میں رہنے والے سکھ خاندان کو تنگ کرتی تھیں، بلکہ لاہور شہر میں کئی دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچاتی تھیں۔ ان سے نہ صرف اس گھر کے مکین تنگ تھے، بلکہ پورا شہر لاہور بھی اذیت میں مبتلا تھا، کیونکہ یہ مافوق الفطرت مخلوق نہ صرف مالی نقصان پہنچاتی تھی، بلکہ آئے روز جانی نقصان بھی کرتی تھی۔ ان کی روک تھام کے لیے گھر کے مکینوں نے اپنی ہمت و طاقت سے بڑھ کر زور لگایا، لیکن جوں جوں دوا کی مرض اور بھی بڑھتا ہی گیا والا مصداق ہوا۔ سکھ فیملی نے بڑے بڑے گروؤں، پنڈتوں، پادریوں، بھگت بھکشوؤں، پیروں، فقیروں اور عاملوں سے رابطے کیے۔ جیسے ہی وہ کسی عامل یا پیر فقیر کو عمارت میں ان کو نکالنے کے لیے لاتے، تو آنے والے عامل ان ہوائی چیزوں کو مکان سے نکالنے کے بجائے، ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے، مافوق الفطرت کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈر کر خود سے تتر بتر ہو جاتے۔ ان کے تتر بتر ہونے پر نہ صرف سکھ فیملی پر تکلیفوں کا دائرہ وسیع ہوتا، بلکہ پورے شہر بھر میں یہ مافوق الفطرت بہت ہی تباہی پھیلانے کا سبب بنتی۔ دوسرے لوگ اور سکھ فیملی کافی بلکہ بہت ہی زیادہ عرصے تک اس کی ناگہانی مصیبت میں مبتلا رہے۔ لاہور نگری کے لوگ ان سے بہت دکھی تھے، کیونکہ اس نظر نہ آنے والی مخلوق نے ان کی سکھ اور خوشیاں جو چھین لی تھیں۔ شاید میں ان 12-13 دروازوں کے اندر رہنے والے باسیوں پر آئی آفت کے سبب ان کے دکھوں، غموں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کر پا رہی۔ یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جن پر کبھی کوئی ایسا برا وقت آیا ہو، جو کسی انجانے دکھ یا مصیبت میں گرفتار ہوئے ہوں۔ لاہوریے بھی ان پرانے گزرے ہوئے وقت میں ایسے ہی انجانے دکھوں میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کسی قسم کے بھی حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ اس وقت کی موجودہ حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن تو ایسے تیسے کر کے گزر ہی جاتا، لیکن جیسے ہی مغرب کی جانب دور افق میں سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا اور تاریخی چھا کر رات کی آمد کا اعلان کرتی، تو لوگوں کے دلوں پر بھی غم و پریشانی کی تاریکی چھا جاتی۔ ہر ایک کے دل میں یہی وسوسہ ہوتا کہ نہ جانے رات کو کس گھر پہ مافوق الفطرت کا حملہ ہو،
कौन उनके जुल्म का निशाना बनेगा, किसके घर में सुबह मातम का राज होगा। ये मंजर हर रात को पेश आता। मगर जब सूरज तुलू होता तो किसी के लिए मुसर्रत और शादमानी का पैगंबर होता और किसी के लिए मुसीबतों और तकलीफों का पहाड़ होता। मगर वहां पर मौजूद लोगों के लिए तो हर दिन और हर रात दुख ही दुख और गम ही गम थे। इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास कोई हल न था। वो लोग सोचते कि या अल्लाह, क्या तमाम ज़ीस्त ऐसे ही तकलीफों और परेशानियों में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी वीरान सहराओं में बसर होगी और ये पूरी उम्र तारीकी के घुप अंधेरों में बसेगी। उधर जिस घर में उन हवाई चीजों का मस्कन था, उनको तो यूं महसूस होता जैसे वो रेगिस्तानों के दुश्वार गुजार सहरा में भटक रहे हैं। लोग सोचते थे कि ये हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है, हमसे क्या कसूर हो गया है, हमें क्यों अनजानी मौत की तरफ बेगुनाह धकेला जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक? आखिर हर काली रात के बाद एक नई सुबह की रोशनी का आगाज भी होता है। खुदावंद कुद्दूस का करना ऐसा हुआ कि हालात ने करवट बदली, जो अचानक खुशियों की नवीद लेकर आई। लोगों के लिए तन्हाइयां नगमों में बदल गईं, अंधेरे उजालों में, तारीकी रोशनी और स्याही सफेदी में ढल गईं। कहाँ लाहौर के पूरे इलाके में खौफ व हिराज, गम और दुख, मुसीबत और परेशानियां सब देखते ही देखते आन की आन में यकदम दूर हो गई। इस दुनिया में अगर कोई सैर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहदहू ला शरीक ने इस पर सवा सैर भी पैदा कर रखा है। हरभजन सिंह सिख फैमिली के सरबराह को किसी ने बताया कि सरदार जी, आपको एक ऐसी हस्ती का बताता हूँ जो बहुत पहुंची हुई सरकार है, जो आपकी इस मुसीबत को एक पल में दूर कर सकते हैं। वो ऐसे हैं कि जब साल में एक दफा घर से बाहर अपने मुरीदों के लिए दौरे पर निकलते हैं तो घर से कदम निकालते वक्त और घोड़े पर सवार होते हुए औरतों की तरह बुर्का पहने हुए होते हैं। हरभजन सिंह ने पूछा, वो क्यों? बताने वाले ने कहा, सरदार जी, वो इसलिए कि कोई गैर औरत उनका चेहरा मुबारक ना देख ले। लेकिन जब वो दौरे से वापस घर तशरीफ लाते हैं तो कहते हैं, हम तो घर से ये नियत करके निकले थे कि इस दफा किसी न किसी को अल्लाह का वली बनाकर आएंगे, लेकिन हर कोई दुनियादारी की हवस लिए हुए है। कोई कहता है, शाह जी, मेरे घर औलाद नहीं, मुझे बेटा चाहिए। कोई कहता है, शाह जी, हमारे घर रिस्क की कमी है, दुआ करें हमारे घर दौलत की रेल पेल हो जाए। कोई कहता है, हमारे बेटों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं। और कोई कहता है, मैं बीमार हूं, दुआ करें सेहत याब हो जाऊं। हर कोई अपनी अपनी गर्ज लेकर आता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मिला दें। हमारी ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है और हम वापस आ जाते हैं। वो सरकार हमें अब कहां पर मिलेंगे, उनका नाम क्या है और किस जगह उनका ठिकाना है? सरदार जी ओकाड़ा शहर के शुमाल में 20-22 मील दूर बंगला कोह गिर के मशरिक में तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पर शेखू शरीफ जो गांव है, वहां पर ये सरकार, जिनका इस्म मुबारक सैयद सरदार आलम शाह हैं, अगर वो आपके साथ आ जाएं तो इस इफ्ताद से ना सिर्फ आपको बल्कि करीबो जवार को बचा सकते हैं। सिख फैमिली के सरकर्दा हरभजन सिंह अपने 2 भाइयों तारा सिंह और निर्मल सिंह के साथ बताने वाले की पुख्ता यकीन दहानी पर कि सैयद सरदार आलम शाह साहब जो गिलानी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उस नागहानी बला से बचा सकते हैं। यूं कहना कि सखावत से खजानों में कमी आती नहीं हरगिज, निकालो जिस कदर दरिया से पानी और बढ़ता है। तीनों सरदार भाइयों ने रास्ते की तफसील से आगाह होने पर ओकाड़ा के लिए रवाना हो गए और पूछते पाछते शेखो शरीफ पहुंचकर सैयद सरदार आलम शाह साहब की खिदमत में हाजिर होकर अपने दुखों, गमों, मुसीबतों और परेशानियों की पिटारी खोली और बताया
इससे पहले हम सैकड़ों की तादाद से गुरुओं, पंडितों, आमिलों और फकीरों को ले जा चुके हैं, मगर उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उन हवाई चीजों पर काबू पा सकें। उन हवाई अशिया से डरकर न सिर्फ हमें बीच मंझधार में छोड़कर राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, बल्कि उल्टा हमारे लिए और ज्यादा तकलीफ का मौजिब बने हैं। वो इसलिए कि जब आमिल आकर उन बलाओं को निकालने की कोशिश करते तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती, यानी गुस्से में आकर हमारा बहुत नुकसान करती हैं। अब किसी ने आपका बताया है तो आपसे बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। सरकार उनकी बिपता सुनकर सरदारों के साथ चल पड़े। लाहौर पहुंचकर उन्होंने उन हवाई मखलूक को हाजिर कर लिया। पहले तो पता ही नहीं होता था कि ये क्या हैं। ये 3 अदद चुड़ैलें थीं। 2 तो सगी बहनें थीं और तीसरी उन दोनों चुड़ैलों ने अपने पीछे छुपाई हुई थी। शाह साहब के पूछने पर बताया कि ये हमारी खालाजाद है। सरकार ने उनसे पूछा, तुमने इस घर में क्यों डेरा डाला हुआ है? ना सिर्फ इन घर वालों को नुकसान पहुंचा रही हो, बल्कि कुर्बो जवार को मलियामेट करने पर तुली हुई हो। तुम्हें कोई नुकेल डालने वाला आज तक नहीं मिला। आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं और यहां से निकालने आया हूं। देखता हूं तुम यहां कैसे रह सकती हो और इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाती हो। शाह साहब की बातें सुनकर चुड़ैलें बड़े तैश में आते हुए गोया हुई। जाओ, चले जाओ। तुम जैसे बहुत से सैकड़ों की तादाद में पीर, फकीर और आमिल हमें निकालने आए, लेकिन सब के सब मुंह की खाने के बाद अपनी अपनी जान बचाकर चलते बने। तुम किस बाग की मूली हो? हम कोई इतनी नादान और अनजान नहीं हैं कि तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डर जाएं। सरकार ने जवाब में फरमाया, तो तुम भी अपने कान खोलकर, बल्कि दिल के कान खोलकर सुन लो कि मैं भी कोई ऐसा वैसा आमिल और पीर नहीं हूं कि तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तो शाह जी, तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम भी तुम्हारी गर्दन तोड़कर रख देंगी और फिर इन सिखों का भी क्रियाकर्म कर देंगी। ना ये रहेंगे और ना फिर कोई आमिल, पीर, फकीर हमें यहां से निकालने आएगा। सरकार ने कहा, ठीक है, फिर हो जाए 2-2 हाथ। मैं तुम सबको कहता हूं कि ये घर छोड़ दो, बल्कि पूरे इलाके को छोड़ दो, किसी और शहर चली जाओ। तो चुड़ैलें बड़े तकब्बुर और करोफर से बोली, ये मुंह और मसूर की दाल कि हमें ना सिर्फ पूरा इलाका बल्कि हमारा अपना ये मस्कन छोड़ने को कह रहे हो। खबरदार, यहां से चुपचाते खामोशी से चले जाओ, वरना क्या? वरना यही सरदार जो तुमको यहां लेकर आया है, वही तुम्हारी गर्दन टूटी लाश छोड़ने तुम्हारे घर जाएंगे। लिहाजा अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। सरकार ने कहा, अगर मैंने तुमको हाजिर कर लिया है तो ना सिर्फ अपना बचाव करना जानता हूं, बल्कि तुम्हारा तिया पांचा करके ही जाऊंगा, यानी तुमको ठिकाने लगाऊंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। शाह जी, तुमको पहले भी बताया है कि तुमसे पहले भी बहुत से आमिल, पीर, फकीर आए जिन्होंने हमें तुम्हारी तरह हाजिर भी किया। हमें यहां से यानी अपने मस्कन से निकालने की धमकियां दी, हमें जलाकर भस्म करने के दावे भी किए, मगर उनके दावे खोखले दावे ही रहे, बल्कि उन सबको अपनी जानों के लाले पड़ गए। डरकर ऐसे दौड़े कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। सरकार ने फरमाया, मैं कोई आमिल और फकीर पादरी नहीं कि खोखले दावे करके चलता बनूं। मुसलमानों के दीन इस्लाम में 3 कौल होते हैं। मैं 3 कौल पूरे करूंगा, फिर उसके बाद देखना मेरा खेल जो मैं तुमसे खेलूंगा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो तुम टस से मस नहीं हो रही हो, बल्कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। फिर तुम मुझे कहोगी तो मैं नहीं मानूंगा। बेहतर है खेल शुरू होने से पहले ही 9-2-11 हो जाओ, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहता हूं कि अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो।
वो बड़े क्रोफर और ढिठाई से बोली, ये क्या सुलेमान पैगंबर के वास्ते देने लग गए हो? हम तो हिंदू हैं, किसी पैगंबर को नहीं मानती। अगर तुम नहीं मानती तो ना मानो। हम अब अपना खेल शुरू करते हैं। पहला कॉल, तुम यहां से चली जाओ, ये जगह छोड़ दो। नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगी। दूसरा कॉल, यहां से चली जाओ, ये जगह और इलाका छोड़ दो, कभी भी नहीं जाएंगी। तीसरा कॉल, मैं कहता हूं यहां से दफा दूर हो जाओ। हम भी कहती हैं, हम नहीं, तुम यहां से दफा दूर हो जाओ। ये सुनना था कि सरकार बहुत गुस्से में आ गए। चेहरा गजबनाक हो गया। सरकार की ऐसी हालत देखते ही चुड़ैलों ने भी फौरन अपना चेहरा बदल लिया, जो बहुत ही हैबतनाक और खौफनाक हो गया। यकदम इतने बड़े कद के कमरे की छत के साथ उनके सर लग गए। बड़े बड़े भद्दे दांत, यूं लगता था जैसे अभी सबको कच्चा चबा जाएंगी। सरकार ना तो उनकी ये हालत देखकर खौफजदा हुए, बल्कि अपनी रूहानी ताकत से जो खुदावंद कुद्दूस ने उन्हें अता की थी, उन तीनों के बालों को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। तो चुड़ैलों ने अपने आप को सरकार से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत चीखीं, बहुत चिल्लाईं, बहुत रोईं, मगर मामला यकदम उल्टा पड़ गया। वही चुड़ैलें जो पहले बहुत अकड़ दिखा रही थीं, अब मिन्नत समाजत पर उतर आईं। बोली, हमें नहीं मालूम था कि आप वाकई इतनी पहुंची हुई सरकार हैं। हम तो यही समझ रही थी कि पहले वाले हजारों आमिलों और पीरों फकीरों की तरह आप हमें निकालने आए तो हमारे सामने रेत की दीवार साबित होंगे। हम आपको आपके उसी पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देती हैं कि हमें छोड़ दो। हम ना सिर्फ अपना मस्कन, ये इलाका, बल्कि शहर ही छोड़कर चली जाती हैं। सरकार सैयद सरदार आलम ने फरमाया, पहले मैं तुम्हारी मिन्नतें समाजतें कर रहा था तो तुम टस से मस नहीं हो रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि तुमने मेरी मिन्नत समाजत करनी है। तुमने मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया है, तो मैं इतना जालिम नहीं हूं जितनी तुम जालिम हो। अल्लाह के नाम के तुफैल तुम पर इतना रहम कर रहा हूं कि तुम्हें जलाकर खाक नहीं कर रहा। हालांकि तुम्हारे अजाइम और जराइम, जिनकी तफसील बहुत लंबी है, को देखते हुए जो तुमने अब तक इस घर के मकीनों पर और पूरे इलाके पर ढाए हैं, तो तुम इस सजा की मुस्तहिक, लेकिन तुमने मुझे वास्ता ही ऐसा दिया है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता, लिहाजा तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूं। इसी जगह तुम्हारे ही मस्कन में उस सामने वाले कमरे को तुम्हारे लिए जिंदान बनाते हुए कैद करता हूं। ये सुनकर वो तीनों फूट फूट कर जारों कतार रोने लगी, चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं, बार बार वास्ते दे रही थीं। सरकार ने फरमाया, जब तुम इस घर के मकीनों पर और इलाके के बासियों पर जुल्म करती थीं तो ये रोते थे, तो तुम बहुत खुशियां मनाती। अब तुम्हारी रोने की बारी है और इनके हंसने की और खुशियां मनाने की। उनके वास्ते मुसलसल जारी थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी तो वो रोते हुए बोली, हम जो दो बहनें हैं हमें कैद कर लें, मगर ये जो तीसरी हमारी खालाजाद है, ये हमारी मेहमान है, इसे छोड़ दें। सरकार ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए उसी कोठी की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कैद करके दरवाजे पर इस्मे आजम पढ़कर कील ठोक दिया, ताकि किसी भी सूरत वो बाहर ना निकल सकें। दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया गया। सिख फैमिली यहाँ पास ही बैठकर ये सब माजरा देख और सुन रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि सरकार ने उन्हें काबू करके कैद कर दिया है तो वो बहुत खुश हुए। ये खबर इर्द गिर्द के लोगों में पहुंची, बल्कि पूरे शहर में ऐसे फैली जैसे खुश्क जंगल में आग फैलती है। शहर के लोग जो पहले बहुत खौफजदा डरे डरे से रहते थे, आज उस अचानक तगय्युर और तबद्दुल पर खुशियां मनाने के साथ साथ मिठाइयां बांटी जा रही थी। सरकार ने एक राजगीर को बुलवाकर
उस कमरे में 1.5 मुरब्बा फीट का एक सुराख बनवाया और उस पर लकड़ी की एक खिड़की बनवा कर लगाई और घर के मकीनों को कहा कि मैंने ये खिड़की इसलिए बनवाई है कि तुम लोगों ने हर रोज शाम को दाल पकाकर साथ में 6 अदद रोटियां उस खिड़की को खोलकर उनको दे देना। सिख फैमिली के तमाम छोटे बड़े अफराद सरकार की करामत को देखकर बहुत ही खुश थे। उन सब घर वालों ने आपस में अलहदगी में जाकर मशवरा किया और फिर सरकार के सामने हाथ बांध कर खड़े थे। जी फरमाइए, अब क्या बात है? तो हरभजन सिंह जो घर का सरबराह था कहने लगा, सरकार एक अर्ज है अगर कबूल हो। कहो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा, पहले हमें ये यकीन दहानी कराएं कि जहां हम पर इतनी बड़ी बल्कि बहुत बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत और आफत को दूर करके हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, वहां हमारी इस अर्ज को भी कबूल करने का वादा करें, तो फिर बताएंगे। ठीक है, अगर कबूल करने वाली होगी तो जरूर कबूल करूंगा। अगले दिन बताएंगे सरकार, अब आप आराम कर लें, रात काफी हो गई है। फिर आपने पूरा दिन उन चुड़ैलों से मगजमारी भी तो की है। अगली सुबह बहुत से लोग सरकार की जियारत करने आ रहे थे। कुछ आ रहे, कुछ जा रहे थे, यानी लोगों का आने जाने का तांता बंधा हुआ था। 1 बजे तक सरकार ने सिख फैमिली से कहा कि अब मुझे आप इजाजत दें, और हाँ, जाने से पहले आप मुझे अपनी अर्ज बता दें जिसके कबूल करने के लिए मुझसे वादे ले रहे थे। हरभजन सिंह ने आगे बढ़कर शाह साहब के सामने एक बड़ा बंद खाकी लिफाफा सामने रखते हुए कहने लगा, सरकार, हमारे गुरु और आपके अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। इस लिफाफे में इस कोठी की मलकियत के कागजात हैं जो हमने आपके नाम करवा दी है। ये मकान आपको अपनी तरफ से तोहफे के तौर पर देते हैं। हमारी तरफ से ये हकीर सा तोहफा कबूल फरमाएं। नहीं, मैं कोई तोहफा लेने के लिए उनको निकालने नहीं आया। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे अल्लाह और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। सरकार आपकी इस बात पर जरूर सोचेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे, फिर आपको इत्ला करेंगे। लेकिन अब हम इस मकान में नहीं रहेंगे क्योंकि ये मकान हम आपके नाम करवा चुके हैं। सरकार, ये नजराना तो बहुत कम है। हमारा तो उन चुड़ैलों ने बहुत नुकसान किया, हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। हम अब आइंदा भी जनाब की खिदमत करते रहेंगे। सरकार को मजबूरन ये कोठी नुमा मकान कबूल करना पड़ा और फिर उसमें रहाइश इख्तियार करना पड़ी, वो भी सिख फैमिली के बेहद इसरार पर। सरकार रोजाना शाम को दाल और रोटियां अपने हाथ से उन चुड़ैलों को डालते। मौसूफ के नाना मियाँ गुलाम मोहम्मद सरकार के मुरीद थे। सरकार ने उन्हें खिलाफत से नवाजा हुआ था। एक दिन कहने लगे, या हजरत, मैं उन चुड़ैलों को देखना चाहता हूँ। मियाँ साहब, तुम उनको नहीं देख सकोगे। मगर मियाँ साहब की जिद और बहुत इसरार करने पर कहा, चलो ठीक है, तुम उन्हें देखना ही चाहते हो तो आज शाम का खाना मैं नहीं, तुम ही उनको देने जाओगे। और हाँ, ज्यादा देर खिड़की के पास खड़े न रहना, सिर्फ एक झलक देखकर खिड़की बंद कर देना। जी सरकार, ऐसा ही करूंगा। शाम को मियाँ साहब ने दाल रोटियां ली और खिड़की को खोला। जैसे ही खाना अंदर किया, चुड़ैलों ने झपट से पकड़ लिया और एक दूसरे से छीन कर खाने लगी। मियाँ साहब उनकी ये झपटा झपटी काफी देर तक देखते रहे। जब अच्छी तरह देख लिया और जी भर गया तो जैसे ही खिड़की को बंद किया, साथ ही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। पीछे शाह साहब अपने चंद मुरीदों के साथ खड़े थे। उन मुरीदों ने शाह साहब के कहने पर आगे बढ़कर मियाँ गुलाम मोहम्मद को उठाकर नीचे कमरे में जाकर लिटा दिया और शाह साहब को कहने लगे, या हजरत, मियाँ साहब को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। सरकार ने मियाँ साहब को दम किया और पानी भी पड़कर पिलाया और पूछा, मियाँ साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी सरकार, आपकी दुआओं से ठीक हूँ। बहुत ही मध्यम सी आवाज में उसने जवाब दिया। सरकार ने फरमाया, मैंने तुम्हें मना किया था कि खाना अंदर देकर फौरन खिड़की बंद कर देना,
لیکن تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کر کے اپنی منمانی کرتے ہوئے نتیجہ دیکھ لیا۔ یہ بخار مسلسل 4 دن تک برقرار رہا۔ 5ویں دن طبیعت سنبھلنے پر سرکار کی خدمت میں حاضری دی۔ میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں سرکار، شاہ صاحب نے ازراہ مذاق کہا۔ میاں صاحب، جی سرکار، آپ نے آج پھر چڑیلوں کو کھانا دینے جانا ہے؟ نہ سرکار، میں نے آج یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے ان چڑیلوں کو نہیں دیکھنا کیا؟ جی نہیں، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ میری چھوڑیے میرے ماں باپ کی توبہ، جو میں اب ان کو دیکھنے کا نام بھی لوں۔ وقت تو ایسے گزر رہا تھا جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہو۔ گھنٹے دن میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یوں کہنا پڑ گیا، اب اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ گلی میں جھانکے کوئی۔ سرکار کا آخری وقت آ گیا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو، بہاریں طوفان کی زد میں آ گئی ہوں، انجم کی زوفشانی کم ہو گئی ہیں، پھول بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گئے ہوں، کلیوں نے بھی مسکرانا چھوڑ دیا ہو، کیونکہ سرکار اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کا مزار مبارک شیخ و شریف میں موجود ہے۔ ادھر دوسری طرف 14 اگست 1947 کا دن کتنا مبارک دن اور روشن دن، اور اس کی صبح کتنی نورانی تھی۔ اس دن حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کا پھل اللہ تعالی رب العزت نے پاکستان جیسی عظیم مملکت سے نوازا۔ سکھ خاندان لاہور کو چھوڑ کر ہندوستان جا بسا۔ ادھر سرکار کے ایک ہی صاحبزادے سید منظور حسین شاہ تھے۔ یہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، باپ کی طرف سے یہ وراثت میں جو ملی تھی۔ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے بسر کر کے اس جہان فانی سے وصال فرما گئے۔ سید منصور حسین شاہ صاحب کے 2 صاحبزادے سید مشکور حسین شاہ صاحب موصوف، جن کے مرید ہیں، اور چھوٹے سید مظفر حسین صاحب تھے۔ ایک روز گرمی کا موسم تھا، دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو فرمایا، کوچوان اشرف کو کہو کہ تانگا نکالے، ذرا بنگلہ شہر ہوں آئیں، تھوڑا سا کچھ کام ہے۔ اشرف نے تانگا تیار کیا۔ گرمی بہت تھی، چل چلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حضرت صاحب تانگے میں بیٹھ گئے تو اشرف نے تانگا چلانا شروع کر دیا۔ تانگا گاؤں سے ابھی کوئی 2 میل دور ہی گیا تھا کہ سڑک کے بائیں جانب سے بہت ہی سریلی سی آواز آئی، سید مظفر حسین شاہ صاحب ذرا کچھ دیر کے لیے رکنا، میری ایک عرض سننا۔ شاہ صاحب نے اشرف کو تانگا روکنے کا اشارہ کیا تو تانگا رک گیا۔ شاہ صاحب اور کوچوان دونوں ہی آواز والی سمت دیکھنے لگے۔ چند لمحوں میں ایک سیاہ برقعے میں ایک لمبی قد والی دبلی پتلی سی خوبصورت دوشیزہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ٹانگے کے پاس آ کر رکی۔ برقعے کا پردہ ہٹایا تو اندر سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایسا حسین و جمیل کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، گول مٹول چمکتی آنکھیں، سرو جیسا قد، چمکتی پیشانی۔ اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا تو اس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا، آپ نے سلام کر لیا ہے تو کیا اب ہم چلے جائیں؟ جی نہیں سرکار، چند منٹ دے دیں، میں نے ابھی تو آپ کو اپنی بات سنانی ہے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، جناب میں بھی آپ کی طرح سید زادی ہوں، میرا گھر حجرہ شاہ مقیم کے پاس چک نمبر 62 تھا کا کیا مطلب ہے کہو؟ نہیں سرکار، تھا جو اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ سرکار 1971 کی جنگ میں انڈیا کے جہاز نے ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہوئے بمباری کی، جس سے ہمارا پورا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا، جس میں کرما ماری کے ماں باپ بہن بھائی بھی شہید ہو گئے۔ میں اس وقت اپنی خالہ کے ہاں راولپنڈی میں تھی۔ جب واپس آئے تو اپنے گاؤں کو ویران اور اجڑا ہوا پایا۔ گھر والوں کے ختم ہونے کی روح فرسا خبر ملی، جس نے میرے دن کا چین اور رات کی نیندیں اڑا دی۔
रोना मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया। मैं हर वक्त अपने प्यारों को याद करके रोती रहती हूँ। आज रात भी रोते रोते मेरी आंख लग गई तो ख्वाब में आपके दादा सैयद सरदार आलम शाह साहब मिले। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और कहा, बेटा जो होना था वो हो गया, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता। अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है, लिहाजा सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा तुम ऐसे करो, यहाँ से चलकर बंगला गोहगीर के मशरिक में उस जगह पर अब जहाँ मैं और आप मौजूद खड़े हैं की निशानदही करते हुए कहा कि इतवार के दिन 10:25 पर एक तांगा गुजरेगा जिसमें सफेद रंग का घोड़ा होगा। उस तांगे में मेरा पोता सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह सुर्ख बालों वाले सवार होंगे। उनको अपने गांव के तबाह होने की और अपने घर वालों की शहादत की खबर बताकर ये कहना कि आपके बड़े भाई सैयद मशकूर हुसैन शाह साहब के यहाँ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। सरकार तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारा निकाह अपने बड़े भाई से अदा करा देंगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बतन से बेटा पैदा होगा। ये है आलीजा मेरे दुखों भरी दास्ताने गम जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। शाह साहब ने उसे तांगे पर पीछे बैठने का इशारा किया। ये दो शीजा जब बैठ गई तो हजरत ने अशरफ कोचवान को कहा, अशरफ जरा तांगे को वापस गांव की तरफ मोड़ लो, जरा इसको घर पर छोड़ आए। तांगा वापस चल पड़ा। अभी कोई आधा किलोमीटर ही सफर तय हुआ था कि पीछे बैठी नकली शहजादी ने जो सैयदजादी का रूप धारे हुए थी, उसने अपनी असली सूरत में आकर अपनी ताकत को यकजा किया और पूरी कुव्वत से शाह साहब की गर्दन पर हाथ मारा, यानी शाह साहब की गर्दन तोड़ने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। जब उसने देखा कि मेरा वार कारगर साबित नहीं हुआ, शाह साहब तो बिल्कुल पहले से भी बेहतर हशाश बशाश हैं, तो उसने 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं की। उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि सरकार ने फौरन पलटकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जहां पहले बहुत खूबसूरत चेहरा था, वहां खौफनाक हैबतनाक शक्ल, शोला उगलती आंखें, तेज और नोकीले दांत अपने आप को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उसने बहुत हाथ पांव चलाए, जोर जोर से चीखी चिल्लाई। शाह साहब ने कहा, बच्चू, मैंने तो उसी वक्त ही देख लिया था जब तुमने मुझे सलाम किया था। तुम्हारे हाथ की 4 उंगलियां देखी, अंगूठा नहीं था, तो मैंने फौरन तुम्हारे पांव की तरफ देखा और तुम्हारे पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं उसी वक्त समझ गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम मुझे बता रही हो, बल्कि तुम एक चुड़ैल हो। फिर भी मैंने तुम्हें आजमाने के लिए कि ये मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहती है, मैं तो अनजान बना रहा, तुम्हें मालूम नहीं होने दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरी क्या दुर्गत बनाता हूं। वो ये सुनकर बहुत फड़फड़ाई, अपने आप को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कहां और कैसे छूट सकती थी। शाह साहब ने अशरफ कोचवान की पगड़ी लेकर उससे चुड़ैल के हाथ पांव बांधकर तांगे में अपने पांव में डाल दिया और शेखुल शरीफ अपने घर ले आए। अपने बड़े भाई सैयद मशकूर हुसैन शाह साहब को तमाम माजरा बताया। उनके मशवरे से अपने घर के बाहर सहन में, जो तकरीबन 15-16 केनाल पर मुश्तमिल है, सहन के दरमियान में पीपल का बहुत बड़ा दरख्त है। उस माफूकुल फितरत को उस पीपल के दरख्त से बांध दिया गया। पूरे 4 दिन तक ये चुड़ैल उस दरख्त के साथ बंधी रही। उन 4 दिनों में उसे देखने वाले लोगों का तांता ही बंधा रहा। जहां जहां तक ये खबर पहुंची, वहां वहां के लोग, बल्कि बहुत दूर दूर से लोग उस चुड़ैल को देखने आते रहे। 5वें दिन सरकार ने उसे दरख्त से खोलकर कार की डिग्गी में डाला और लाहौर की उसी कोठी के कमरे में, जहां 3 अदद चुड़ैलें पहले से कैद थीं, उस कमरे का ताला खोला और उस चुड़ैल पर रूहानी अमल करके उसके हाथ और पांव को खोलकर उन तीनों के साथ कैद कर दिया। अब पहले वाले खाने में भी इजाफा कर दिया गया, जो उन्हें हर शाम को दिया जाता था। जैसे ही उन्हें खाना मिलता,
یہ ایک دوسرے سے الجھ کر جھپٹا جھپٹی سے چھین کر کھانے کی کوشش کرتی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی ارادہ ہوتا کہ میں زیادہ کھا لوں تاکہ میری بھوک مٹ جائے، میرا پیٹ بھر جائے۔ ایک دن اس جھپٹا جھپٹی کو دیکھتے ہوئے سید مظفر حسین شاہ صاحب، جو اب اس دنیا فانی میں نہیں، صاحبزادے سید نصر الدین شاہ صاحب عرف سید ٹیپو سلطان صاحب نے ان پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے کمرے کا تالا کھولا تو چڑیلیں خوف سے تھر تھر کانپنے لگیں اور ٹکر ٹکر شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگیں۔ صاحبزادہ صاحب نے انہیں کہا، ڈرو مت، آؤ باہر نکل آؤ۔ کہنے لگی، ہم کمرے سے کیسے باہر آ سکتی ہیں؟ ایک قدم بھی اگر باہر نکالا تو جل کر خاک ہو جائیں گی، کیونکہ اس کمرے کو اسم اعظم سے کیل ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس لیے تو ہم خوفزدہ ہیں کہ کہیں آپ ہمیں نیست و نابود نہ کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ تم کو ختم کروں، بلکہ میرا کچھ اور ہی ارادہ ہے، وہ بھی اگر تم سب مجھ سے تعاون کرو گی تو کیا جی، ہم سے آپ کو جس قسم کا بھی تعاون کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میں تم سب کو اس قید سے آزاد کر دوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ چاروں یک زبان ہو کر بولیں، صاحبزادہ صاحب جی، ہمیں آپ کے گھرانے کے متعلق معلوم نہ تھا، اب ہم پر سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہم کو معاف کر کے آزاد کر دیں گے تو ہم بھی آپ سے پختہ وعدہ کرتی ہیں کہ آئندہ اپنی پرانی روش پر بھول کر بھی نہیں چلیں گی، کبھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ہاں سرکار، جہاں ہم پر اتنی بڑی مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہماری ایک عرض ہے، اس پر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے، یعنی ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک اور مہربانی فرمائیں گے، وہ یہ کہ یہ گھر ہمارا مسکن ہے۔ اگر آپ جناب کی اجازت مل جائے تو کبھی کبھار اس گھر میں چکر لگا لیا کریں۔ مسکن تو ہر ایک کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اب تو یہ آپ کا آستانہ مبارک ہے، اجازت ہو تو اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جایا کرے گی۔ یہ چوتھی بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ قید میں رہی ہے۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم آزاد ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ صاحبزادہ جی، ہم آپ سے پکا قول و قرار کرتی ہیں، ہم آپ سے کیے گئے وعدے کو ضرور نبھائیں گی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر رہی، ہم سے کبھی غلطی سے بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں دوبارہ اسی قید خانے میں ڈال دینا یا ہمیں جلا کر بھسم کر دینا۔ اگر آپ میں ہمیں چھوڑنے کی ہمت ہے تو ہمیں دوبارہ قابو کرنے کی بھی طاقت ہے۔ سرکار، اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ قول و قرار لینے کے بعد بس پھر کیا تھا، سید نصیر الدین عرف ٹیپو سلطان شہزادے نے انہیں آزاد بھی کر دیا اور انہیں اپنے مسکن میں آنے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ شاہ صاحب نے نئی کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں بنا لی تو پھر موصوف محمد حنیف شاکر کی چھوٹی ہمشیرہ اور بہنوئی حافظ محمد حسین کو صاحبزادہ صاحب نے اس کوٹھی میں رہائش دے دی، جو 4-5 سال تک اس میں رہائش پذیر رہی۔ اس عرصے میں کئی بار یہ چڑیلیں اس گھر میں آتی رہیں، لیکن کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچایا۔ ہاں، ان کے ساتھ شغل ضرور کرتی تھیں کہ کبھی کوئی برتن اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز اٹھا لی، ڈھونڈنے پر نہ ملتی، لیکن کچھ وقت کے بعد جہاں کبھی ہوتی وہاں سے دوسری جگہ پر پڑی ملتی۔ آج بھی وہ اسی طرح اپنے مسکن میں آتی جاتی رہتی ہیں۔